Hello friends, welcome to you all to our YouTube channel ACM Education. So today we are going to start the first chapter of chemistry of class 10th, that is titled as chemical reactions and equation. So this is the part 1 of the first chapter. In this lecture we will cover what is a chemical reaction, what are its characteristics, what is a chemical equation, how to write a balanced chemical equation, and what is the proper way in which we can write a chemical equation. Okay. So first of all, we will look at the definition of a chemical reaction. So the definition says that a process in which a new substance with new properties are formed. For example, if you take a paper and burn it, the ash which remains is completely a new product and it has new properties that are compared to the paper. So the process of burning this paper is an example of a chemical reaction. Similarly, if you take a magnesium ribbon and burn it in the presence of oxygen to form magnesium oxide, it is also an example of a chemical reaction. Okay. So two things we have to note in this following example. First of all, when we will burn a magnesium ribbon, we first of all clean it with the help of a sandpaper. Why? Because when we kept the magnesium ribbon over a long time in the presence of oxygen, a layer of magnesium oxide is formed around the magnesium ribbon. So we will first of all clean it with the help of a sandpaper and then burn that magnesium ribbon in the presence of oxygen to carry out the reaction. And second point is, when we will burn this magnesium ribbon, a dazzling white flame is produced during this reaction. Okay. So these two things you have to note because these 2 points are very important and often asked in your exams. Okay. I hope you are clear now what is a chemical reaction. Now the second point says that during a chemical reaction, atom of one element do not change into of another. Rather, a rearrangement of atom takes place. Okay. That means in न्यू एटम डू नॉट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. ओके. ऐसा नहीं होता कि कोई एटम नया फॉर्म हो जा रहा है, बल्कि वो जो एटम है उसी में रीअरेंजमेंट होता है, उससे एक नया कंपाउंड बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान. देन द थर्ड पॉइंट सेज द एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. अब ये तो आपको पता ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप जानते होंगे, जो कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. और एटम जो होते हैं उसमें मास होता है, आपको पता है एटम में मास होता है. तो वैसे ही एटम भी ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में. ठीक है. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका केमिकल रिएक्शन का, और ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको ध्यान रखने हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर. और स्पेशली जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया मैग्नीशियम रिबन का, उसमें जो 2 पॉइंट्स थे, आपको क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है और उसमें से क्या फिल्म निकलती है, ये एक सेट के क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. ठीक है. फिर हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में. मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं. सो देर आर 5 पॉइंट्स, दैट इज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन नो दैट रेदर ए केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पॉइंट इज द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस. अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो वह केमिकल रिएक्शन है. एग्जाम्पल, अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो ये एक एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का. ठीक है. वैसे ही एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3. ठीक है. इसको भी आप याद रखने का कोशिश कीजिए. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3. अगर ये हम HCl में रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है. तो ये 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर. ठीक है. फिर अगला जो पॉइंट है वो है चेंज इन कलर. मतलब अगर एक रिएक्शन हो रहा है, इनिशियली उस रिएक्शन का कुछ कलर था, मतलब जो उसमें हमने कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स कुछ लिए होंगे रिएक्शन करने के टाइम, वो एक पर्टिकुलर कलर हो गया उसका, कोई भी अगर कलर चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, हमारा केमिकल रिएक्शन का. देखते हैं हम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल,
द ऑरेंज कलर ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट changes to green when it reacts with sulfur dioxide. Okay, so first thing, पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है हमारा K2Cr2O7। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7। इसका जो इनिशियली कलर होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का, वो होता है ऑरेंज। वो जब सल्फर डाइऑक्साइड में रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल, द पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट चेंजेस टू कलरलेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद साइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले पोटाशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इसका कलर इनिशियली पर्पल कलर होता है। ठीक है, पर्पल कलर का होता है ये, और ये कलरलेस हो जाता है जब साइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है। तो ये दो एग्जाम्पल हुए आपके किसके, चेंज इन कलर के। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेज दैट इज चेंज इन स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, रिएक्शन के बाद वो लिक्विड हो गया, या फिर सॉलिड से गैस हो गया, या फिर लिक्विड से गैस, कोई भी स्टेट चेंज हुआ। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आप कैंडल जलाते हो, वो सॉलिड होती है, बर्न होने के बाद लिक्विड बन जाती है, स्टेट चेंज हुआ, तो ये हो गया स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा किसी भी रिएक्शन के दौरान। तो आप सोच रहे होगे कि ये प्रेसिपिटेट क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट which separate out from a solution during a chemical reaction। मतलब अगर कोई भी बीकर है आपका, उसमें अगर सोल्यूशन है और रिएक्शन हुआ, ठीक है, सोल्यूशन का रिएक्शन हुआ, और अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट सेटल डाउन हो गया उसके अंदर, ठीक है, तो वो द सॉलिड प्रोडक्ट which separate out and settle down during this reaction is known as a precipitate। okay, and also it is an insoluble product। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये बाद में वापस जो हमारा सोल्यूशन है उसमें मिक्स हो जाए, नहीं, ये इनसोल्यूबल होके ही बीकर के अंदर सेटल डाउन होके रह जाता है। अभी इसका हम एग्जांपल देखते हैं, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, द येलो कलर प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, फॉर्म्ड व्हेन पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लीड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो बीकर के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, जिसका कलर होता है येलो। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर एक रिएक्शन में इनिशियली कोई टेम्परेचर है जिस पे रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन होने के बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर बढ़ गया या फिर घट गया, कोई भी तरह का चेंज हुआ अगर टेम्परेचर, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा केमिकल रिएक्शन का। अब जैसा कि हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है, तो ये भी हम कैटेगराइज कर देते हैं उसको दो तरह के रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिन रिएक्शन में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिएक्शन होने के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो रिएक्शंस हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। और जिन रिएक्शन में टेम्परेचर घट जाता है, इनिशियली कुछ टेम्परेचर होता है केमिकल्स का जब हम रिएक्शन नहीं शुरू करते हैं, और पूरा केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर जो टेम्परेचर घट जाए, इनिशियली जो टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर कम जाए, तो वो रिएक्शंस हमारे कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है इस रिएक्शन में वो पहले से बढ़ जाता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। और एंडोथर्मिक में वैसे अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एमोनियम क्लोराइड के साथ, तो जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन क्या होते हैं और उनके जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या होते हैं, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और कौन से एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। ये तो बात होगी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं।
अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन सेज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of a substance involved in it। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हमें अभी पता चला, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको हम अगर किसी भी सिंबल एंड फॉर्मूला के को यूज़ में लेके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर ये जो लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्यू राइज टू MgO, ये हमने जो लिखा यहाँ पे हमने मैग्नीशियम का सिंबल यूज़ किया Mg, ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया O2, हमने प्लस लिखा, मतलब ये दो सब्सटेंस हमने लिए और प्रोडक्ट हमारा बन गया क्या, MgO। तो ये जो हमने लिखा अभी, ये हुआ हमारा एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और एक चीज़, ये जो Mg और O2 हमने लिए, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। Mg और O2 जो इनिशियली हमने लिए, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पे दो है तो रिएक्टेंट्स, अगर एक ही होता तो हम बोलते रिएक्टेंट। और यहाँ पे ये MgO बना, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये डेफिनेशन है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो अभी जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने शुरुआत में एक पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी एटम जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो मतलब जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड जितने होंगे, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में उतने ही एटम रहेंगे। अगर ऐसा हमने लिखा, हमने जब केमिकल इक्वेशन को लिखा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड अगर नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, तो जो इक्वेशन हमारा बनता है वो होता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसका पूरा उल्टा, मतलब अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन लिखा और उसमें जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड वो अगर अनइक्वल है, तो वो हुआ हमारा एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखूं H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू HCl, तो इधर देखिए आप, रिएक्टेंट की साइड दो एटम है हाइड्रोजन के और दो ही एटम है क्लोरीन के, पर प्रोडक्ट की साइड एक एटम है हाइड्रोजन का और एक ही एटम है क्लोरीन का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम हैं प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड वो इक्वल नहीं है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल होते, कोई भी केमिकल इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी बात हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अब जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एटम तो ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे अगर एटम क्रिएट नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो रिएक्शन के बाद हमारे प्रोडक्ट में एटम, जैसा हमने यहाँ पे देखा, कम हो जा रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमारे जो एटम है वो कम क्यों हो रहे हैं पहले से? तो एक्चुअली जो एटम है वो कम नहीं हो रहे हैं, जो हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें हम उसको बैलेंस करके हमें लिखना पड़ता है। मतलब देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन कराता हूँ तो HCl जो बनता है उसका फॉर्मूला तो HCl ही रहेगा, H2Cl2 तो नहीं हो जाएगा ना उसके अपने आप, वो HCl ही रहेगा, ठीक है। पर हम जब ये केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें उसको बैलेंस करके ही लिखना पड़ता है। तो अब आप सोचेंगे कि हम कैसे बैलेंस करके लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे? पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो है, हर रिएक्शन बैलेंस ही होता है एनवायरनमेंट में। बस हम जब लिखते हैं तब हम कुछ रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं लिखते टाइम, और कुछ अनबैलेंस रहते हैं जिनको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो मैं भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इनिशियली इजी एग्जांपल आपको कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया है उसको आपको बैलेंस करके कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यही एग्जांपल लेते हैं हमने जो यहाँ पे लिया था H2+Cl2 HCl का, और इसको हम ट्राई करते हैं बैलेंस करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ H2 प्लस
Cl2 give rise to HCl। अभी इसको हमें बैलेंस करके लिखना है, क्योंकि हमें पता है एटम क्रिएट नहीं होते ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से इस रिएक्शन को लिखना है कि जो नंबर ऑफ एटम जो हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों के, वो रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट के साइड इक्वल बन जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ स्टेप्स अभी बताता हूँ। उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, और उसको एक टेबुलर वे में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे कि यहाँ पे आप लिख दो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ऐसे आप 2 कॉलम बना लो आप चाहो तो। और फिर इधर लिखिए जैसे हाइड्रोजन है हमारा रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट साइड है हमारा, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और क्लोरीन के 2 एटम हैं, और प्रोडक्ट की साइड हमारा हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन का 1 एटम है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के जो नंबर ऑफ एटम हैं वो कम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि हमने एक टेबल बनाई और उसमें हमने ये लिख दिया कि रिएक्टेंट की साइड कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं और प्रोडक्ट की साइड कौन से एटम के कितने एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं। अब हमें कोई भी नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिए नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर रिएक्टेंट की साइड या फिर प्रोडक्ट की साइड मल्टीप्लाई करना है। कुछ इस तरह से कोई एक नंबर हमें चूज करके मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड है नंबर ऑफ एटम फिर इक्वल हो जाए। देखिए आई होप आप ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने अभी क्या कहा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसको बैलेंस करके, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन कम है, तो मैंने क्या कहा, आपको कोई नेचुरल नंबर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एटम कम है रिएक्टेंट की साइड, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट की साइड ही कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट की साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2HCl बन गए। मतलब जो HCl कंपाउंड था वो 2 हो गया, HCl। तो अभी क्या हुआ देखिए, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट की साइड 1 एक ही एटम था वो चेंज होके 2 हो गया, क्योंकि जो पूरा HCl है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। और वैसे ही क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन भी जो 1 एटम था वो चेंज हो गया और 2 एटम बन गए क्लोरीन के, है कि नहीं। तो अब देखिए रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन के 2 एटम, प्रोडक्ट की साइड हमने 2 मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन के 2 एटम रहे, वैसे ही क्लोरीन के रिएक्टेंट की साइड 2 एटम रहे और प्रोडक्ट की साइड 2 एटम रहे। तो ये जो अभी इक्वेशन हुआ ये आपका बैलेंस हो गया, मतलब अभी ये जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे जो इक्वेशन हैं वो आपको बैलेंस करने हैं। आपको ये देखना है कि कहाँ पे नंबर ऑफ एटम कम है, वहाँ पे कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना है, और फिर से आपको चेक करना है फिर कि अभी बैलेंस हुआ कि नहीं, अगर नहीं तो फिर से कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह से नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है और बैलेंस करना है। और एक चीज़ अगर आपको लग रहा होगा कि आपको कहाँ तक नेचुरल नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था तो आपको लगा कि हाँ 2 में ही हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या 3, 4, 5, 10, 100, 1000 कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता रहूं। नहीं, ऐसा नहीं। ज़्यादातर केसेस में आप 5 तक नेचुरल नंबर जब भी चेक करोगे तो आपके ज़्यादातर इक्वेशन बैलेंस अपने आप हो जाएंगे। और अगर आप सोचते हो कि क्या और कोई मेथड नहीं है बैलेंस करने का इक्वेशन को, क्या हमें सिर्फ ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से देखते जाना है, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करूँ, वहाँ पे नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करूँ, तो नहीं, एक्चुअली और भी 2-3 मेथड्स हैं, पर वो हम 10th लेवल में यूज़ नहीं करते और ना ही CBSE बोर्ड आपको मार्क देता है उन टेक्निक से, क्योंकि वो शॉर्टकट टेक्निक्स हैं और वो आपके हायर एजुकेशन में ही आप उसको यूज़ करते हो, 10th लेवल में नहीं। ठीक है,
तो 10th तक आपको सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इक्वेशंस को बैलेंस करना है, क्योंकि जो भी आपको इक्वेशन 10th पे पूछे जाते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं और आप इजीली हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिर हम अगला एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, आपको पता ही है, मैंने लिख दिया Mg प्लस O2 फॉर ऑक्सीजन गिव राइज टू MgO। इसको अभी आपको बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट की साइड प्रोडक्ट की साइड एक टेबल बना लीजिए और नंबर ऑफ एटम लिख लीजिए कहाँ पर कितने हैं। तो देखिए रिएक्टेंट की साइड मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। और प्रोडक्ट की साइड मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। तो अभी देखिए आपका मैग्नीशियम जो है वो बैलेंस है, मैग्नीशियम को आपको कुछ नहीं करना। पर प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन कम है, तो आपको कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं प्रोडक्ट की साइड फिर से 2 ही मल्टीप्लाई कर दूं जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में किया था, तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन 1 से 2 हो जाएंगे प्रोडक्ट की साइड, क्योंकि मैंने MgO को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। पर क्योंकि मैंने पूरे MgO को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो Mg का एक एटम था वो भी चेंज हो गया और 2 बन गया। तो फिर हमें मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इधर तो MgO2 ऐसे लिख सकता था, यहाँ पे 2 नहीं लिखता और MgO2 लिख देता, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला MgO ही है, उसको आप चेंज करके MgO2 नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है जो ऑक्सीजन गैस है उसका फॉर्मूला O2 ही है। अब अगर O3 लिख दोगे तो वो ओजोन बन जाएगा, वो फिर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, या फिर O लिख दोगे तो वो ऑक्सीजन एटम डिनोट करेगा, उसका मतलब ऑक्सीजन गैस नहीं होगा। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो MgO ही है, उसको आप MgO2 नहीं लिख सकते। तो आपको कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो इधर आगे मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ कंपाउंड है MgO के वो चेंज होंगे 1 2 3। जैसे यहाँ पे 2 MgO के कंपाउंड है, अगर आपने MgO2 लिख दिया तो उसका सेंस पूरा अलग हो गया, वो फिर MgO रहा ही नहीं, वो कुछ और ही कंपाउंड बन गया। तो आपको वो नहीं करना है, आपको MgO को MgO ही रहने देना है, उसके आगे कुछ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका फिर अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हमने देखा कि जो मैग्नीशियम था वो 1 से 2 हो गया। और रिएक्टेंट की साइड देखिए मैग्नीशियम का एक एटम है, तो आपको भी मैग्नीशियम को बैलेंस करना है रिएक्टेंट की साइड। तो रिएक्टेंट की साइड अगर मैं फिर से मैग्नीशियम को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट की साइड मैग्नीशियम के हैं वो 1 से 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो MgO नहीं है ना, यहाँ पे तो Mg ही है। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Mg चेंज होके Mg के 2 एटम हो गए यहाँ पे, और ऑक्सीजन का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे सेपरेटली उसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना। तो ये अभी जो मैंने इक्वेशन लिख दिया ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। आई होप आपको अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, और एग्जाम्पल आप देखते जाइए और आपको क्लियर होता जाएगा। अभी जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा नेक्स्ट, अभी यहाँ तक ये मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे तो नहीं, मतलब इजी इक्वेशंस थे। अभी मैं जो करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी के कुछ मैंने सिलेक्ट किए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वो आपको भी कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2, यहाँ पे लिखा BaCl2। ये बोल रहा है व्हेन बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का मैं फिर फॉर्मूला लिखता हूँ Al2SO4 होल थ्राइस। ये एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता कि एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस ही क्यों हुआ, कुछ और नहीं हुआ,
तो ये हमें पता चलता है उनकी वैलेंसी से। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और SO4 पूरे की वैलेंसी 2 माइनस होती है, Al की 3 प्लस होती है। फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका 10th में अगला जो चैप्टर नंबर 3 है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, और उससे अगला जो चैप्टर है वहाँ पे आप पढ़ोगे कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर होगी कि जो कोई भी जो है, जैसे मैंने अभी लिख दिया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 लिखा, क्यों मैंने BaCl क्यों नहीं लिखा, BaCl3 क्यों नहीं लिखा, ये आपको वहाँ पे क्लियर होगा। अभी इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली आप फिलहाल याद रख लीजिए कि बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 होल थ्राइस। जैसे आप अगले अगले चैप्टर पढ़ते जाओगे फिर आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 ही होता है। फिर आपको ये डाउट नहीं रहेगा या फिर आपको ये लगा कि मुझे इसका रटना पड़ेगा एक एक फॉर्मूला को बैठ के, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में जैसे अब अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फिर मैंने फॉर्मूला लिखा BaSO4, और उसके साथ वो क्या बोल रहा है, क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया AlCl3। अभी इसको आपको बैलेंस करके इस रिएक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनके कितने नंबर ऑफ एटम हैं वो पहले लिस्ट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बेरियम का रिएक्टेंट की साइड एक एटम है यहाँ पे, और प्रोडक्ट की साइड भी एक ही एटम है बेरियम का। तो ये चीज़ हमने पहले लिख दी। फिर क्लोरीन देखते हैं हम। क्लोरीन के रिएक्टेंट में 2 एटम हैं और प्रोडक्ट में क्लोरीन के 3 एटम हैं। ये देखिए Cl3, यहाँ पे Cl2। फिर हम एल्युमिनियम का लिखते हैं। एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड 2 है और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं? 1 है। फिर सल्फर को देखिए। तो सल्फर के आप सोच रहे होंगे कितने एटम हैं, तो सल्फर के यहाँ पे 3 एटम हैं। क्यों? क्योंकि जो SO4 है उसको पूरे को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ये SO4 होल थ्राइस है, समझ गए? SO4 होल थ्राइस मतलब S के 3 एटम हैं और ऑक्सीजन के 4 × 3 12 एटम हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में फिर सल्फर का देखिए कितने एटम हैं। सल्फर का 1 एटम है, यहाँ पे सल्फर का 3, यहाँ पे सल्फर का 1। फिर देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 × 3 12 और यहाँ पे 4। तो रिएक्टेंट की साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन आर 12 और प्रोडक्ट की साइड 4। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, आपने लिस्ट डाउन कर लिए कि रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनके कितने नंबर ऑफ एटम हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना है और इसको बैलेंस कर देना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ अभी तक इजी था, तो हमने कोई भी ऐसे नंबर गैस कर लिया और तुक्का भी लग गया होगा और बैलेंस हो गया। पर इतने बड़े रिएक्शन में जहाँ पे इतने सारे एलिमेंट हैं हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि किसको कैसे बैलेंस करें। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखें तो सबसे पहले आपको उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो। देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 12 एटम हैं रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। इतने ज़्यादा ना ही रिएक्टेंट में और किसी एलिमेंट के हैं ना ही प्रोडक्ट में और किसी एलिमेंट के हैं। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के जो एटम हैं उनको बैलेंस करना है। तो अब देखिए रिएक्टेंट की साइड ज़्यादा है, प्रोडक्ट की साइड कम है, तो आपको प्रोडक्ट की साइड कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे कि एटम जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 हैं, 12 हैं। अगर मैं BaSO4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, जो
बी बैरियम है वो 1 से चेंज हो जाएगा 3 में, क्योंकि मैंने BSO4 पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया। सल्फर चेंज हो जाएगा कितने, 1 से 3 एटम हो जाएंगे सल्फर के, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 × 3 12 हो जाएंगे। तो अब हमने ये जो किया उससे क्या हुआ, हमारा जो नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन के जितने एटम थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो बैलेंस हो गए यहाँ पे। और फिर पर उससे क्या हुआ, हमारे सल्फर और बेरियम के प्रोडक्ट की साइड जितने एटम थे वो चेंज हो गए। तो फिर आप देखिए सल्फर को, तो सल्फर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अब सेम हो गए, पहले ये भी सेम नहीं थे अभी सेम हो गए, तो सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया। फिर आप देखिए बेरियम को, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले ये जो जितने एलिमेंट हैं इनको हम फिर को चेक करना है, फिर हम अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर हमने देखा किसको, बेरियम को, बेरियम के कितने एटम अभी बन गए 3, और यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं 1, तो मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट में अभी बेरियम के कितने एटम चाहिए 3 चाहिए। तो मैंने क्या किया, BaCl2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, Ba जो है वो यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड 3 हो गया, और उसके साथ क्लोरीन जो है इसके कितने एटम बन गए, 3 × 2 6 बन गए, पहले 2 थे, आपने जैसे ही BaCl2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन के 6 एटम बन गए। अब आप देखिए क्लोरीन को, क्लोरीन रिएक्टेंट की साइड यहाँ पे 6 एटम है और प्रोडक्ट की साइड 3 है, तो अभी आपको फिर क्लोरीन को बैलेंस करने का ट्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे AlCl3 में क्लोरीन है, अगर मैंने इस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन इनिशियली जो 3 था वो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो फिर हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। और एल्युमिनियम का क्या हुआ, एल्युमिनियम 1 से चेंज हो गया 2 में, मतलब 2 एटम अभी बन गए, एल्युमिनियम के पहले 1 एटम था अभी 2 बन गए। अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अभी जो टेबल हमने लिखी, ये जो अभी टेबल बनी हमारी यहाँ पे मल्टीप्लाई इतने सब करने के बाद, इस टेबल को देखिए, बेरियम 3 3, क्लोरीन 6 6, एल्युमिनियम 2 2, सल्फर 3 3, ऑक्सीजन 12 12। तो ये अभी बैलेंस हो गया पूरी तरह से, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट थे उनके नंबर ऑफ एटम अभी इक्वल हो गए। तो ये जो भी रिएक्शन आपने लिखा 3BaCl2 + Al2SO4 होल थ्राइस गिव राइज टू 3BaSO4 + 2AlCl3, ये अभी आपने जो इक्वेशन लिखा ये पूरी तरह से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिखा। तो अभी आपको पता चल जा रहा होगा शायद कि अब हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो आपको यही करना है, जितने भी अगर आपको ज़्यादा एलिमेंट कहीं भी दिखे, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ऑक्सीजन में 12 एटम थे, तो सबसे पहले उसी को पकड़िए, फिर जैसे आपने उसको बैलेंस कर दिया तो उस कंपाउंड को आपने मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि सिर्फ तो ऑक्सीजन नहीं था, वो कंपाउंड को आपने मल्टीप्लाई किया, तो उस कंपाउंड में बाकी जो एलिमेंट थे उनमें क्या चेंज हुआ वो देखिए, फिर वो वहाँ पे जो चेंज हुआ उसको फिर से आपको बैलेंस करना है। इस तरह से आपको सभी को बैलेंस करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये भी एनसीईआरटी का ये अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। सबसे पहले उसने कहा सोडियम, तो हमने लिख दिया Na, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट में हमारा क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH बन रहा है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, और इसको आपको बैलेंस करके लिखना है। तो वहीं कीजिए, टेबल बना लीजिए, रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड, नंबर ऑफ एटम देखिए कौन सा एलिमेंट के कितने एटम हैं, फिर हम उसको कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने की सोचेंगे और बैलेंस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सोडियम Na, उसका रिएक्टेंट की साइड 1 एटम है, और प्रोडक्ट की साइड सोडियम का 1 एटम है। फिर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के टोटल कितने, ये देखिए 3 है। यहाँ पे एक NaOH में 1 एटम है और हाइड्रोजन गैस में 2 एटम है, तो टोटल कितने हुए प्रोडक्ट में
3 एटम हुए हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 + 1 3। फिर ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में एक एटम है और प्रोडक्ट में भी एक ही एटम है, तो ये आपने लिख दिया। अब आपको इसको बैलेंस करना है। तो अभी हम जैसे करते आ रहे थे, अगर आपने थोड़ा आपको समझ में आया होगा, तो कई लोग अभी क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए 2 है 3 है, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 6 हो जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। पर ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ 2 से इसको 6 बना दूँ और यहाँ 3 है, यहाँ उसको 6 बना दूँ, तो आप क्या करोगे? H2O को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे क्या करोगे? NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर H2O को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों में कहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे? दोनों में तो 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, फिर तो वो 2 × 2 4 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने NaOH में 2 मल्टीप्लाई किया, तो जो हाइड्रोजन थे वो भी 6 थोड़ी हुए। देखिए 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये कितने हैं? ये 2 ही है, तो 2 + 2 4 हुआ ना, 6 तो नहीं हुआ, 4 हुआ, है कि नहीं? यहाँ पे अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, आपने सोचा आगे ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करने से नहीं होगा, आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? 2 × 2 4, ये +1 5, तो फिर से 5 हुआ, 6 नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम तो अभी जितने एग्जाम्पल करते आ रहे थे, वैसे तो अगर हम जिस तरह से कर रहे थे, हमने टेबल देखते थे, यहाँ पे हम उनको बैलेंस कर देते थे, वो हो जाता था। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? तो रीज़न ये है कि जो प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन है वो किसी एक ही कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट में नहीं है। यहाँ पे 2 जगह हाइड्रोजन है। देखिए, एक NaOH में एक हाइड्रोजन का एटम है और फिर हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो यहाँ पे 2 जगह हाइड्रोजन के एटम हैं। तो आप फिर टेबल देख के आप अगर सोच रहे हो कि मैं बैलेंस कर दूं, तो नहीं होगा। आपको ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन तीनों को पैरेलली देखना है और फिर बैलेंस करना है। तो अब आप यहाँ पे कैसे बैलेंस करोगे? तो एक काम कीजिए, देखिए रिएक्टेंट की साइड जो हाइड्रोजन है वो कम है, सोडियम ऑक्सीजन सेम है, पर रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन कम है, तो आपको हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 2 है, तो आप एक काम कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। तो अभी आपको फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन को 4 एटम लाना है और ऑक्सीजन को 2 लाना है। अब देखिए यहाँ पे O है, हमें O2 चाहिए और H4 चाहिए। ऑक्सीजन को ध्यान दी, हम ऑक्सीजन को पहले कंसंट्रेशन में लेते हैं, इस पर फोकस करते हैं। तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस मुझे करना है, तो मैंने NaOH में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने पहले सोचा मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही जगह है, हाइड्रोजन 2 जगह है, मैं क्यों कंफ्यूज होता हूँ, पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता हूँ। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। उसके साथ सोडियम क्या हुआ? ये देखिए, सोडियम 1 से 2 हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हुआ? यहाँ पे 2 + 2 4। तो ये देखिए हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे जैसे ही NaOH में 2 मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। पर अभी क्या हुआ? सोडियम बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि अब रिएक्टेंट में सोडियम का एक एटम है, पर प्रोडक्ट की साइड अब सोडियम के 2 एटम बन गए। तो मैं फिर यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अभी सोडियम के नंबर ऑफ एटम 1 से चेंज हो गए 2 में। तो अब ये जो इक्वेशन आपका बना, ये बैलेंस हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो आई होप अब आपको इतने सारे एग्जाम्पल की बात समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बैलेंस करता हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं 1-2 क्वेश्चंस और आपको करा देता हूँ इसी टाइप के, तो फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है अगला। ये कह रहा है बेरियम क्लोराइड, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, तो मैंने लिख दिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड।
एंड सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये दो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, इनसल्यूबल बैरियम सल्फेट एंड ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो क्या क्या बना हमारा, बैरियम सल्फेट PaSO4 और उसके साथ क्या बना हमारा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। अब यहाँ पे दिया है इनसोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 एंड ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये क्यों दिया है, तो ये आप जो हम लिखेंगे तब इसके बाद जो टॉपिक है प्रॉपर वे टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्यों दी है और उसको हम कैसे इक्वेशन में लिखेंगे। तो अभी आपने जो लिखा, अभी ये आपने जो इक्वेशन लिखा है उसमें ये तो कहीं नहीं दर्शा रहा ना कि जो BaSO4 है ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर क्या है, वैसे ही NaCl सॉल्यूशन है या फिर क्या है। तो ये हम कैसे दर्शाएंगे ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इक्वेशन यही है और इसको हमें बैलेंस करना है, इस पे ध्यान देते हैं। तो वही चीज़ करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे और बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखिए बैरियम, रिएक्टेंट की साइड एक एटम, प्रोडक्ट की साइड भी एक ही एटम। फिर क्लोरीन, रिएक्टेंट की साइड 2 एटम, प्रोडक्ट की साइड ये देखिए 1 एटम। फिर सोडियम, रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, 2 एटम हैं और प्रोडक्ट की साइड 1 एटम है। फिर सल्फर को देखिए, सल्फर का 1 एटम है, ठीक है, एक ही है। अगर यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है कि 4 एटम है सल्फर के, तो नहीं, एक ही है। यहाँ पे SO4 लिखा है, ऐसे नहीं लिखा कि SO4 नहीं लिखा, SO4 लिखा है, उसका मतलब S और O4 है। ठीक है, अगर SO4 लिखता तो S4 और O4 होते। तो ये चीज़ आपको शायद क्लियर होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे ये S1 है, 4 क्यों नहीं हुआ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पे देखिए कितने हैं, सल्फर के 1 एटम है, 4 कैसे नहीं होगी आपको समझ में आ गया होगा, कि अगर होल देता तो 4 होता। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, 4 एटम हैं और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं, 4 हैं। तो अभी देखिए ऑक्सीजन सेम है दोनों साइड नंबर ऑफ एटम, सल्फर सेम है, सोडियम सेम नहीं है, क्लोरीन सेम नहीं है और बैरियम सेम है। ठीक है, अब वो क्लोरीन और सोडियम इन दोनों को बैलेंस करना है। तो अगर मैं पहले सोचूं क्लोरीन या फिर सोडियम, चलो किसी को भी सोचता हूँ। अगर मैंने सोचा कि मैं पहले सोडियम को बैलेंस करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए NaCl है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्रोडक्ट की साइड NaCl था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2 हो गए। और क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन के भी जो नंबर ऑफ एटम थे वो 1 से 2 हो गए, जिससे आपने NaCl को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड जितने भी एलिमेंट थे सभी बैलेंस हो गए। ये देखिए बैरियम 1 1, क्लोरीन 2 2, सोडियम 2 2, सल्फर 1 1 और ऑक्सीजन 4 4। तो ये आपने जैसे ही यहाँ पे NaCl को 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरा इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो गया। आई होप ये एग्जाम्पल आपको भी क्लियर हो गया होगा। अभी एक फाइनल एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक लास्ट और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसी बैलेंसिंग के टॉपिक के अंदर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये Na है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है होता है HCl। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड के लिए हमने लिख दिया NaCl और वाटर के हमने लिख दिया H2O। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। ये वर्ड में दिया गया था, उसको मैंने ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया आपके सामने। और अगर आपको डाउट है अभी भी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्यों हुआ, NaCl को सोडियम क्लोराइड ही क्यों बोलते हैं, ये सब आपको डाउट है, तो ये अगले चैप्टर्स में क्लियर होगा। फिलहाल आप इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करना है। देखिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट की साइड सोडियम एक एटम, प्रोडक्ट की साइड सोडियम एक एटम, ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड एक एटम, ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड एक एटम, हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड एक एटम, प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन दो एटम, यहाँ पे दो है, एक सेकेंड सॉरी, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट की साइड भी देखिए, यहाँ पे NaOH में एक H है, यहाँ पे HCl में भी एक है, और क्लोरीन एक, क्लोरीन यहाँ पे भी एक। ये देखिए सोडियम रिएक्टेंट की साइड 1, प्रोडक्ट की साइड 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। फिर क्या दिया था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1, यहाँ पे 1 एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, टोटल 1 + 1 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड और 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट की साइड। ये देखिए 2, क्लोरीन 1 1। तो ये देखिए ये तो अपने आप पहले से ही बैलेंस है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन दिया था राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, तो आपने जैसे ही अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा और आपने ये देखा कि ये तो पहले से बैलेंस है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जैसे आपने इक्वेशन लिखा सॉल्व हो गया, आपको कोई भी नंबर इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, बैलेंसिंग के केमिकल इक्वेशन के। और एक लास्ट टॉपिक अभी हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज द प्रॉपर वे टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। मतलब अभी जितने आप इक्वेशन लिखते थे उसमें से हमें सिर्फ ये पता चलता था कि कौन से एलिमेंट या फिर कौन से कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। देखिए शुरुआत में हमने सबसे पहले एक इक्वेशन लिखा था, ये रहा, शुरुआत में सबसे पहले ये इक्वेशन लिखा था Mg+O2 + MgO। तो अगर कोई बंदा को स्टेटमेंट कुछ नहीं पढ़ता है, सिर्फ आपका ये इक्वेशन पढ़ता है, तो उसको कितनी चीज़ समझ में आएगी कि एक मैग्नीशियम का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन गैस है 1 मोल, और 1 मोल मैग्नीशियम का आपने क्या लिया है, एलिमेंट लिया है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट और 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए है। उसको आपने क्या किया, कुछ रिएक्शन कराया, कैसे रिएक्शन हुआ नहीं पता हमें ये, पर आखिर में क्या बचा, MgO बना। अगर ये आप देख के अगर कोई आपसे पूछेगा कि MgO का कलर बताइए या फिर Mg का स्टेट बताइए, ऑक्सीजन आपने गैस ली, लिक्विड ऑक्सीजन लिया, क्या लिया, MgO, ये सॉलिड था, लिक्विड था, इसको आपने हीट किया या फिर नहीं किया, या फिर और कोई सब्सटेंस आपने इन दोनों के साथ और कोई सब्सटेंस मिलाया तब रिएक्शन हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से नहीं पता चल रही। तो ये जो आपने इक्वेशन लिखा ये एक प्रॉपर वे नहीं है, आपने इक्वेशन आधा अधूरा लिखा है यहाँ पे। तो आप कैसे एक इक्वेशन को लिखेंगे कि वो पूरी तरह से एक प्रॉपर वे बने, तो ये चीज़ें हम देखते हैं अभी। एक सेकेंड, तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम, ताकि आप उसको और भी इंफॉर्मेटिव बनाइए। और सिर्फ इंफॉर्मेटिव बनाने की भी बात नहीं है, जो पर्टिकुलर कोई कंडीशन होती है, जैसे अगर आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक बहुत ही पॉपुलर केमिकल रिएक्शन है, आप जानते ही होंगे, वो सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता। आपको पता है जो प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं वो मतलब दिन में ही बनाते हैं, रात में नहीं बनाते, मतलब वो सनलाइट उस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है।
तो ये एक उसकी कंडीशन है कि सनलाइट उससे चाहिए ही चाहिए। उसी तरह से उसको क्लोरोफिल भी चाहिए, मतलब प्लांट में क्लोरोफिल होना चाहिए। आपको पता होगा कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एक प्लांट अगर उसका फूड बना रहा है तो उसको सनलाइट चाहिए और साथ में उस प्लांट में क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा। तो ये उसकी कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस आपको ज़रूर मेंशन करनी है, वरना आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी है यहाँ पे आप कंडीशंस, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आपको लिखना ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स भी कटते हैं। तो ये क्या क्या पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है इक्वेशन लिखते टाइम, ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपको फिजिकल स्टेट इंडिकेट करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। देखिए, जैसे मैंने ये एक पहले इक्वेशन लिखा था, Zn + H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 + H2। तो ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा है, ये उन सारे के फिजिकल स्टेट लिखे हैं। सॉलिड अगर है कोई भी, अगर सॉलिड सब्सटेंस मैंने लिया तो मैंने उसको S से डिनोट किया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डोनेटिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब सॉलिड अगर आप लिखते हो किसी भी, अगर कोई केमिकल इक्वेशन आपने लिखा और कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है, तो आप उसको कैसे इंडिकेट करते हो, यहाँ पे एक ऐसे ब्रैकेट करते हो और उसके अंदर S लिखते हो। तो उसका मतलब हो गया कि ये एक सॉलिड कंपाउंड या फिर सॉलिड एलिमेंट है। तो ये Zn ब्रैकेट में S, इसका मतलब हो गया सॉलिड जिंक आपने लिया है। फिर आपने क्या लिखा, H2SO4 एक्वस गिव राइज टू ZnSO4 एक्वस प्लस H2। H2 गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है, उसको आपको डिनोट करना है तो आप ब्रैकेट में G लिख देते हो। और अगर वाटर देखिए लिक्विड है तो उसके लिए L लिख देते हो। ठीक है, तो आपको सॉलिड, गैस और लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए S लिखना है ऐसे ब्रैकेट में, गैस के लिए ब्रैकेट में G लिखना है और लिक्विड के लिए L लिखना है। ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। और अब ये बचा एक्वस, AQ, इसका मतलब होता है एक्वस। देखिए, जैसे S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, L मतलब लिक्विड, AQ मतलब होता है एक्वस। अब ये क्या होता है, तो AQ मतलब एक सल्यूशन, उस कंपाउंड का वाटर में अगर कोई सल्यूशन है तो उसको हम एक्वस बोलते हैं और उसको AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक बीकर है, उसमें अगर H2SO4 जो एसिड है वो थोड़ा आपके पास अगर एसिड है, ठीक है, और बाकी आपके पास वाटर है, तो ये जो सॉल्यूशन है, मतलब H2SO4 सॉल्यूशन इन वाटर, तो H2SO4 का सॉल्यूशन वाटर में है। ये पूरा बीकर सिर्फ H2SO4 एसिड जो है उसका पूरा लिक्विड नहीं है, मतलब पूरा लिक्विड H2SO4 आपने नहीं भरा है। आपने थोड़ा H2SO4 लिक्विड लिया, थोड़ा पानी लिया, उसको मिक्स किया। जैसे अगर हम बोलें तो चीनी का पानी, अगर आपने पानी में चीनी ली, उसको मिक्स कर दी, तो वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। पर अगर आपने पूरी चीनी ली, उसको पूरी तरह से मेल्ट कर दी, मतलब शुगर सिरप अगर आपने लिया, शुगर सिरप, वो होता है लिक्विड शुगर, उसके लिए आप लिखोगे L मतलब लिक्विड। अगर आपने पानी में चीनी मिक्स की है, समझ रहे हो, पानी में चीनी मिक्स की है, तो वो होता है एक्वस। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एक्वस कौन सा स्टेट होता है और उसका डिफरेंस क्या है लिक्विड से, क्योंकि गैस सॉलिड तो आपको पता है पूरी अलग चीज़ होती है। एक्वस और लिक्विड में आपको डिफरेंस, मतलब आपको अगर कन्फ्यूजन हुई तो ये आप आई होप क्लियर होगी। जैसे ZnSO4 एक्वस है, उसका मतलब पानी में थोड़ा ZnSO4 का सोल्यूशन है, मतलब एक बीकर है उसमें ZnSO4 थोड़ा है और बाकी पानी है, उसका एक पूरा सोल्यूशन है। वो जो स्टेट है उसके लिए हम डिनोट करते हैं एक्वस। ठीक है, तो ऐसे आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करने हैं। जैसे देखिए अगले एग्जाम्पल में CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और उसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, प्लस CO2 गैस गिव राइज टू CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए एक्वस गैस, मतलब एक्वस AQ, गैस के लिए G, सॉलिड के लिए S और लिक्विड के लिए L।
ये आपने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा फिजिकल स्टेट है, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो जो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, जैसे वाटर जनरली लिक्विड ही होता है, मतलब एनवायरमेंट में अब H2O है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस की तरह ही एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। तो ये आपको कुछ कॉमन चीज़ें पता है, वो कभी क्वेश्चन में नहीं दी रहेंगी। पर अगर आपको कोई नया कंपाउंड दिखता है, उसको आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है ये क्या है, तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है। जैसे कि ये क्वेश्चन में जब लिख रहा था, क्वेश्चन में ये दिया था कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with carbon dioxide gas, a precipitate of calcium carbonate is formed along with water। ये स्टेटमेंट था, तो मुझे पता चल गया कि सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर लिक्विड है। और आप सोच रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट का आपको तरह सॉलिड है, तो उसने कहा था प्रेसिपिटेट, समझ रहे हो, उसने कहा था ए प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, या फिर ऐसा दिया रहेगा कि ए सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। अगर आपको प्रेसिपिटेट दिया तो पता है प्रेसिपिटेट जो है एक सॉलिड सब्सटेंस ही है। या आपने प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन, सॉरी मतलब प्रेसिपिटेट के डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि जो प्रेसिपिटेट है वो एक सॉलिड कंपाउंड ही होता है जो कि रिएक्शन में सेटल डाउन हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सॉलिड। और एक चीज़ आपको भी डाउट होगी, ये एरो मार्क्स क्या है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे अप एरो दिया है और यहाँ पे CO3 के अंदर डाउन एरो दिया है। तो ये अप एरो डाउन एरो मैं भी आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगा कि ये मैंने क्यों लिखे हैं। अगर ये आपको समझ में आते हैं पूरी तरह से 100% आपको समझ में आ जाता है कहाँ पे अप एरो देना है, कहाँ पे डाउन एरो देना है, कहाँ पे नहीं देना, तो आप लिखिए। अगर नहीं समझ में आता तो मत लिखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की ये बाकी कंडीशंस हैं, पर फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन था उसके स्टेटमेंट यह था हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, मतलब जब भी हमने एक बीकर में रिएक्शन कराया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उससे बाहर निकल गई, बाहर हाइड्रोजन गैस निकल गई, उसके लिए मैंने यहाँ पे अप एरो से डिनोट किया कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। और अगले स्टेटमेंट में जैसे अब यहाँ पे दिया था कि ए सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज सेटल डाउन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्रोडक्ट है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे जम के नीचे रह जाएगा, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट रह जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन एरो लिखा है। तो अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अप एरो क्या है, डाउन एरो क्या है और फिजिकल स्टेट कैसे इंडिकेट करते हैं। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो दूसरा इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। पहली तो आप ये याद रखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2, इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। अगर कहीं पे ये ऐसा दिया रहेगा कि व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट्स विद CO2, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लाइम वाटर मतलब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2 की ही बात कर रहा है। और अगर आपको दिया रहेगा क्विक लाइम, क्विक लाइम आपको अगर दिया रहेगा तो क्विक लाइम होता है CaO। अगर कहीं पे दिया रहेगा व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद अगर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मतलब समझ जाइए कि CaO रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे CO है, अगर यहाँ पे क्विक लाइम लिखा रहेगा तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है CaO। तो क्विक लाइम, ये लाइम वाटर, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और उसके अलावा CaO3 जो है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट है, ये तो हो गया। और एक चीज़, ये जो रिएक्शन है ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, मतलब अगर कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और अगर आपको पूछा है ठीक है गैस निकल रही है ये मुझे पता चल गया, पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है, उसको आपको प्रूव करना है कि आप मुझे बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा टेस्ट करना पड़ेगा जिससे आप कंफर्म हो जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन में निकल रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मतलब अगर एक टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, उसमें कोई रिएक्शन हो रहा है और उधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, हम क्या करते हैं और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं
उसमें थोड़ा लाइम वाटर लेते हैं। लाइम वाटर CaOH2 अभी हमने आपको बताया। तो आपने और एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लाइम वाटर लिया, उस टेस्ट ट्यूब को इधर दिखाया आपने, मतलब उसको आपने जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जहाँ से, उस टेस्ट ट्यूब के पास आपने रखा। तो क्या हुआ, यहाँ पे लाइम वाटर था, ये कलरलेस होता है, ठीक है। लाइम वाटर यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने कैसे ब्लू में यहाँ पे लिख दिया, पर एक्चुअल में जो लाइम वाटर है वो कलरलेस होता है। उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड को आप मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने रिएक्ट करा दिया इधर। तो आपको पता है अभी आपने जो रिएक्शन पढ़ा COH2 + CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये जो है एक पहली बात तो ये एक प्रेसिपिटेट है। तो आपका यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे पहले जो लाइम वाटर था ये लिक्विड स्टेट में था COH2। जैसे ही आपका रिएक्शन होगा उसके बाद एक सॉलिड प्रोडक्ट उस टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन होकर रह जाएगा, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ कि ये वाइट कलर का है, ये जो प्रेसिपिटेट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाइट कलर का है और लाइम वाटर इनिशियली कलरलेस था। तो आपका पहले जो टेस्ट ट्यूब था जिसमें लाइम वाटर था वो कलरलेस था। जैसे ही आपने उस टेस्ट ट्यूब को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो आपका एक सॉलिड प्रोडक्ट बन गया और वो वाइट कलर का एक सॉलिड प्रोडक्ट बन गया। तो अगर ये चीज़ कहीं भी होती है तो ये आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पूछे राइट ए टेस्ट बाय विच वी कैन नो कैल्शियम की कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्विंग, तो आप लिखोगे इफ द गैस विच इज इवॉल्विंग ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कैन टर्न द लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, देन वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्विंग ड्यूरिंग दैट रिएक्शन। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अभी मैंने डिस्कस की, लाइम वाटर होता है, ये टेस्ट होता है, ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और ये जो टेस्ट मैंने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, ये आपके अगले आने वाले चैप्टर में फिर से यही टेस्ट आएगा और फिर से आप यही स्टेटमेंट पढ़ोगे। तो ये अच्छी बात आपके लिए यही होगी कि आप पहले चैप्टर से ही स्टेटमेंट को याद रख लो, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि क्या टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया, ये पहला पॉइंट हो गया कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, उसका उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करके। सेकंड पॉइंट फिर आता है कि हमें उसके अंदर कोई भी अगर हीट चेंज हो रही है तो उसको मेंशन करना है। जैसे ये देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का हमला होता है, अगर आपको पता हो ग्लूकोज को C6H12O6 लिखते हैं। वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर निकलता है और उसके साथ हीट निकलती है। मतलब जब ये रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर पहले से बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे हीट निकल रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट निकल रही है, तो इसको आप ऐसे प्लस हीट ऐसे इंडिकेट करते हो, ठीक है। और एक और रिएक्शन देखिए, जैसे CaCO3 प्लस हीट, आपने CaCO3 में आपने हीट दी, मतलब ऐसे ही CaCO3 पड़ा है वो सीधे ही Ca और CO2 नहीं बनता, पर अगर आप CaCO3 को हीट दोगे, CaCO3 को हीट दोगे तो CaO + CO2 बना। तो ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि जैसे ही CaCO3 है उसको आपने हीट दी, पहले रिएक्शन के पहले ही आपने हीट दी, फिर Ca और CO2 बना, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर घट गया, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप ऐसे इंडिकेट कीजिए, एक्सोथर्मिक को यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड प्लस हीट और एंडोथर्मिक को यहाँ पे एक्सोथर्मिक को प्रोडक्ट की साइड प्लस हीट और एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिएक्टेंट की साइड प्लस हीट देके ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो ये बात हो गई हीट चेंज की। अगर हम हीट दे रहे हैं या फिर हीट निकल रही है किसी रिएक्शन को तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे। और आखिर में हम बात करते हैं कि जो स्पेशल कंडीशंस होती है जिसके अंदर ही कोई रिएक्शन होता है उसको फिर हम कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कि 2 पॉइंट से ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट चेंज हो रही है या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रिएक्शन हो रहा है, इसको आपको 100% मेंशन करना ही करना है। एक टाइम पर अगर आप फिजिकल स्टेट नहीं मेंशन करोगे तो हो सकता है आपके मार्क नहीं कटे, हो सकता है अगर टीचर का मूड बुरा हो तो आपके मार्क काट देगा, पर यह कोई रूल नहीं है कि वो मार्क कटे ही कटे अगर आप फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करते हो। पर अगर आपने हीट चेंज या फिर कंडीशंस मेंशन नहीं की तो आपके मार्क 100% श्योर है आपके मार्क कटेंगे ही कटेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक रिएक्शन हो रहा है उसको आपको हीट चाहिए, अगर आपने हीट दी ही नहीं तो वो तो रिएक्शन होगा ही नहीं ना। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर आप CaCO3 को हीट दोगे तभी Ca और CO2 बनेगा। अगर आप यहाँ पे हीट नहीं लिखते हो, सीधा लिख देते हो CaCO3 = CaOCO2, मतलब क्या हुआ, रूम टेम्परेचर में CaCO3 ऐसे ही पड़ा था, वो अपने आप रिएक्शन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए आपको हीट चेंजेस मेंशन करना ज़रूरी है। उसी तरह से कंडीशंस, कोई टेम्परेचर में हो रहा है या फिर कुछ प्रेशर में हो रहा है या फिर कोई स्पेशल कंपाउंड है, वो चाहिए ही चाहिए एक रिएक्शन को होने के लिए, तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। जैसे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन में रिएक्ट करती है तो CH3OH बनता है, ठीक है, ये है मिथेनॉल। CH3OH को हम मिथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। पर ये जो मिथेनॉल बनता है ये ऐसे ही नहीं बन जाता। मिथेनॉल, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ली, हाइड्रोजन लिया, दोनों को आप सोच रहे हैं रिएक्ट करा दूं और CH3OH बन जाएगा, नहीं। उसके लिए ये कंडीशंस हैं, ये देखिए, आपको सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और उसके साथ आपको ZNO और CrO3 ये दो एलिमेंट भी आपको चाहिए, तब जाके CO और H2O से CH3OH बनता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए ये कंडीशंस आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादातर केस में ये कंडीशंस आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। ये कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। इनिशियली हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो कि इतने सारी चीज़ें याद रखनी है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको बहुत ईजिली याद रह जाएंगी और आपको ये याद रहना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए फोटोसिंथेसिस का, जैसा हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, फोटोसिंथेसिस यही है ये। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन दोनों के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा, आपको पता है। ये दोनों नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों हैं तो ग्लूकोज बन गया और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और वाटर लिक्विड के फॉर्म में लेता है। ये देखिए, गैस और लिक्विड, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है प्लांट और H2O वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ले रहा है। और प्लांट के पास क्लोरोफिल है और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, यहाँ हम बात कर रहे थे उसी की, ग्लूकोज बनाता है और उसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, जो कि हम वापस लेते हैं। आपको पता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है उसको आपको प्रॉपर वे है लिखा, आपको उसके फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको हीट चेंजेस मेंशन करने हैं और आपको कंडीशंस मेंशन करनी है। और एक चीज़, आपको नाम भी लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल में लिखा है, ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है CaOH2 के नीचे और उसके ब्रैकेट में भी लिखा है ये लाइम वाटर कहते हैं उसको लाइम वाटर कहते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CaO2,
ऐसे आपको हर रिएक्शन के नीचे लिखना है, जैसे यहाँ पे Zn है, इसके नीचे आपको ऐसे लिखना है ब्रैकेट के अंदर जिंक H2SO4, इसके नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ZnSO4 इसके नीचे आपको लिखना है कि ये जिंक सल्फेट है, और H2 के नीचे लिखना है ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले देखा केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, गैस निकलती है, स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, उसके हिसाब से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये सब ने पढ़ा। फिर आपने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, तो केमिकल इक्वेशन जो हम सिंबलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर आपने पढ़ा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। फिर आपको ये पता चला कि सारे इक्वेशन जो है वो बैलेंस ही होते हैं, सिर्फ हम जब लिखते हैं तो कुछ इक्वेशंस होते हैं जो कि लिखते टाइम हमको ऐसा लगता है कि वो अनबैलेंस्ड है, तो उसको हमें बैलेंस करके लिखना पड़ता है। और फिर हमने देखा कि हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जिससे आपको ये पता चला कि हम कोई भी इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे। और आखिर में हमने पढ़ा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं और एक प्रॉपर वे क्या है उसको लिखने का। तो यहाँ पे मैं पहला लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की वो समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ही आपके डाउट क्लियर कर दूँ। बहुत जल्दी मिलूँगा आपको सेकेंड लेक्चर के साथ। उसमें हम जो बहुत सारे टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक ऑल द बेस्ट टू ऑल, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस